میری بڑی بہن بہت خوبصورت تھی، مگر افسوس یہ کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرتی۔ عمر تو اس کی 18 سال تھی، مگر وہ بچوں جیسی باتیں کرتی۔ میرے ماں باپ اس سے بہت پیار کرتے اور یہ بات کسی کو نہ بتاتے کہ ہماری ایک بیٹی پاگل بھی ہے۔ جب شادی کا وقت آیا تو والدین نے میری شادی کر دی، مگر میری بڑی بہن کی شادی نہ کی۔ شادی کے 2 ماہ بعد میں اپنی ماں سے ملنے آئی تو میری ماں میرے گلے لگ کر بچوں کی طرح رونے لگی۔ جب میں نے ماں سے رونے کی وجہ پوچھی تو ماں نے بتایا کہ ایک دن میں بازار گئی، تب تمہاری بہن گھر پر اکیلی تھی۔ جب واپس آئی تو وہ بے ہوش پڑی تھی۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ اسے ہوش تو آ گیا، مگر اس کے ساتھ کسی نے زیادتی کی تھی اور اب وہ ماں بننے والی ہے۔ ماں کی بات سن کر میں کانپ سی گئی۔ میں نے یہ بات اپنے شوہر سے چھپا لی اور 9 ماہ بعد اس کا بچہ گود لے لیا۔ شوہر کو کہا کہ میری دوست کا بچہ ہے۔ ایک دن ساس کو سچ بتا دیا اور اب میں ہر وقت بد دعا دیتی، جس نے میری بہن کے ساتھ زیادتی کی ہے اس پر خدا کا عذاب آئے گا۔ میری بات پر میری ساس کا رنگ اڑ جاتا اور وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ مجھے ساس پر شک ہو گیا۔ ایک روز ساس کی الماری صاف کرنے لگی تو اندر سے گرنے والی چیز دیکھتے ہی میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ میرا نام ایمان ہے اور میری بڑی بہن کا نام ہینا ہے۔ ہم 2 بہنیں تھیں۔ میری بڑی بہن مجھ سے 1 سال بڑی تھی۔ میری بہن میرے ساتھ کھیلتے ہوئے گر جاتی اور پھر وہ ایک طرف دیکھتی اور رونے لگتی۔ ایسا لگتا ہے جیسے اسے کوئی دکھائی دے رہا ہے، لیکن وہ بتا نہیں سکتی۔ وہ چیختے ہوئے بے ہوش ہو جاتی۔ ہم سب اس کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ بابا ایک امام مسجد تھے۔ اماں کہتی تھی کہ آپ اپنی بیٹی کو کوئی دم وغیرہ کیا کریں، یہ اچانک سے ڈر جاتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے۔ بابا کہتے کہ میں تمہیں پانی پر دم کر کے دیتا ہوں، تم سارا دن وہی پانی اسے پلاتی رہا کرو۔ اماں اب ایسا ہی کرتی تھی۔ پانی پینے سے میری بہن بے ہوش نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر بھی وہ پہلے کی طرح ایک طرف دیکھ کر رونے لگتی۔ اماں گھر کا سارا کام چھوڑ کر میری بہن کو گود میں لے کر بیٹھی رہتی۔ اماں ہر وقت دعا کرتی رہتی، یا اللہ ہم پر رحم فرما، تو سب جانتا ہے۔ کافی عرصہ اسی طرح گزر گیا اور میری بہن ذہنی طور پر معذور ہو گئی۔ اماں کے آنسو خشک نہیں ہو رہے تھے۔ بابا نے کہا کہ تم صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہماری بیٹی ایک دن ضرور ٹھیک ہو جائے گی۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ ہم دونوں بہنیں جوان ہو گئیں، لیکن میری بہن ٹھیک نہیں ہوئی تھی، جبکہ دیکھنے میں وہ بہت خوبصورت تھی۔ ایک دن میں کمرے سے باہر نکلی تو اماں بابا سے کہہ رہی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ میری بیٹی پر کسی نے جادو کر دیا ہے، جو اتنا ڈرتی ہے اور خوف کی وجہ سے ایسی ہو گئی ہے۔ بابا نے کہا کہ تمہارے وہم کا کوئی علاج نہیں، بھلا ہم پر کون جادو کرے گا اور کیوں کرے گا؟ اماں نے کہا کہ یہ وہم نہیں ہے، کیا آپ بھول گئے کہ ہماری شادی کے بعد کیا ہوا تھا؟ بابا نے کہا کہ میں کچھ بھی یاد نہیں کرنا چاہتا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دے دی ہے، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ اماں نے کہا کہ آپ بھول سکتے ہیں، لیکن میں نہیں بھولی۔ آج تک اس جادو کرنے والے کا پتہ نہیں چل سکا، جس نے جادو کروا کے اتنے سال ہمیں اولاد کے لیے ترسایا تھا، لیکن میں نہیں بھولی۔ آج تک اس جادو کرنے والے کا پتہ نہیں چل سکا جس نے جادو کروا کے اتنے سال ہمیں اولاد کے لیے ترسایا تھا۔ بابا نے کہا کہ فرض کرو اگر پتہ چل بھی جاتا تو کیا ہوتا؟ کیا ہم اسے مار ڈالتے؟ میں نے اپنا معاملہ اپنے رب کے سپرد کر دیا ہے اور میرا رب بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ تم پریشان نہیں ہوا کرو۔ ایک تو ہم انسان ناشکرے بہت ہیں، ہمیشہ اس چیز کے لیے روتے ہیں جو نہیں ہے، اور جو ہے اس کی قدر نہیں کرتے۔ اماں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کر رہی۔ بابا نے کہا کہ اب بس بھی کر دو، مجھ میں اور ہمت نہیں ہے۔ اماں نے کہا کہ میں معذرت چاہتی ہوں، میں بھول گئی، آپ آرام کریں، میں چائے لاتی ہوں۔ بابا نے کہا کہ نہیں، میں آرام کروں گا، صبح فجر کی اذان سے پہلے مجھے مسجد پہنچنا ہوتا ہے۔ بابا سونے کے لیے لیٹ گئے، لیکن اماں کی بات میرے ذہن سے نہیں گئی تھی۔ اماں کس جادو کی بات کر رہی تھی اور کس پر ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اماں سے کچھ پوچھتی، اماں کو تیز بخار ہو گیا تھا۔ اماں بخار کی وجہ سے سخت تکلیف میں تھی۔
मुझ से अम्मा की हालत देखी नहीं जा रही थी। मैं अम्मा के लिए दुआएं करती रही। एक हफ्ते बाद अम्मा की तबीयत ठीक हुई थी। अम्मा ने एक दिन बाबा से कहा कि बुखार में मुझे अजीब से ख्वाब आते रहे हैं। बाबा ने कहा कि क्या मतलब, कैसे ख्वाब? अम्मा ने कहा कि बुखार में मुझे भी ऐसा लगता जैसे कोई मेरी सांस रोकने की कोशिश कर रहा है, और कभी लगता है जैसे कोई मुझे खींचकर चारपाई से नीचे फेंक रहा हो। कोई अनदेखी ताकत मुझे तकलीफ दे रही थी। बाबा ने कहा कि ये सब तेज बुखार की वजह से था। अब बताओ, जब से तुम बुखार से निकली हो ऐसे ख्वाब दोबारा आए? अम्मा कुछ देर सोचने के बाद बोली कि हाँ, अब नहीं आए। बाबा ने कहा, तो फिर परेशानी किस बात की? तुम सोचती बहुत हो और उन्हीं सोचों को दिमाग पर सवार कर लेती हो। फिर शैतान हमें परेशान करने के लिए वसवसे डालता है और फिर वही कुछ ख्वाब की सूरत में नजर आता है। तुम सोते वक्त कुरान पाक की कुछ सूरतें पढ़कर सोया करो, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन बाबा दूर के इलाके में गए हुए थे। मुझे फिर से वही बात याद आई तो अम्मा के पास जाकर बैठ गई। अम्मा से कहा कि अम्मा, एक बात पूछूं, मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। अम्मा ने मेरी तरफ देखा और पूछा, ऐसी क्या बात है जो मेरी बेटी को परेशान कर रही है? मैंने कहा कि अम्मा, एक दिन आप बाबा से किसी जादू के बारे में बात कर रही थी, लेकिन बाबा टालते रहे। प्लीज आप मुझे बताएं किस पर जादू हुआ था और किसने किया था? अम्मा ये बात सुनते ही कुछ देर खामोश रही और फिर कहा कि मैं तुम्हें बता देती हूँ, लेकिन तुम अपने बाबा से कुछ ना पूछना। मैंने कहा कि पक्का वादा, आप बताएं। फिर अम्मा ने कहा कि ये तब की बात है जब मेरी और तुम्हारे बाबा की शादी को 8 साल होने वाले थे, लेकिन हम अभी तक औलाद की नेमत से महरूम थे। हमने कोई डॉक्टर, कोई पीर फकीर नहीं छोड़ा था, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ और आखिर थक हार कर हम घर बैठ गए। एक दिन तुम्हारे बाबा के जानने वाले जो उनके बहुत पुराने दोस्त थे वो मिलने आए और तुम्हारे बाबा से कहा कि एक बुजुर्ग हैं, तुम उनसे भी मिल लो, हो सकता है कोई रास्ता निकल आए और अल्लाह ताला तुम्हें औलाद की खुशी दिखा दे। लेकिन तुम्हारे बाबा इतने दुखी हो चुके थे कि अब वो किसी के पास नहीं जाना चाहते थे। तुम्हारे बाबा ने अपने दोस्त से कहा कि अल्लाह ताला ने जब किस्मत में लिखी होगी तब औलाद हो जाएगी, मैं अब किसी के पास नहीं जाना चाहता। तब तुम्हारे बाबा के दोस्त फिर बोले कि जब इतने लोगों के पास गए हो और कोई हल नहीं मिला तो मेरे कहने पर एक दफा उस बुजुर्ग से मिल लो। वो एक ही दफा इस्तिखारा करते हैं और वजह भी बता देते हैं। तब तुम्हारे बाबा मान गए और अपने दोस्त के बताए हुए बुजुर्ग के पास चले गए। उस बुजुर्ग के पास बहुत रश था, वो अल्लाह वाले थे। हम समझते हैं कि हम जितने परेशान हैं उतना कोई नहीं होगा, लेकिन जब बाहर निकलकर देखें तो सारी दुनिया ही किसी न किसी आजमाइश या मुसीबत में मुब्तला मिलेगी। फिर अम्मा ने कहा कि जब तुम्हारे बाबा उस बुजुर्ग के पास पहुंचे और उससे इस्तिखारा करवाया तो उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हारी बीवी पर अमल किया गया है। उसने अपनी किसी बात का बदला लेने के लिए किसी से बहुत सख्त अमल करवाया है। तुम्हारे बाबा ने कहा कि फिर इस जादू का कोई तोड़ भी तो होगा, मैं किसके पास जाऊं? फिर उस बुजुर्ग ने कहा कि इसको जादू ही खत्म कर सकता है जिसने जादू किया है। बुजुर्ग ने कहा कि फलां फलां जगह पर एक आदमी रहता है, उसके पास जाओ, हो सकता है उसे तुम पर तरस आ जाए और वो अपने गंदे जादू का असर खत्म कर दे। फिर तुम्हारे बाबा उस बुजुर्ग की बताई हुई जगह पर गए। वहां एक औरत अपने सामने कुछ गोश्त और सुइयां रखकर बैठी थी और अमल शुरू करने वाली थी। जब तुम्हारे बाबा उसके सामने गए और उससे कहा कि मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैं मजबूर था इसलिए सीधा यहाँ आ गया, मुझे फलां शख्स से मिलना है। उस औरत ने बहुत गौर से तुम्हारे बाबा को देखा और कहा कि जिसकी तलाश में तुम आए हो वो यहाँ नहीं है। तुम्हारे बाबा ने कहा कि क्या आप बता सकती हैं कि वो कहाँ मिलेगा? उस औरत ने कहा कि वो जहाँ गए हैं उसका पता बताने की हमें इजाजत नहीं है, लेकिन तुम मुझे अपना काम बता सकते हो। तुम्हारे बाबा ने कहा कि मैं जिस काम से आया हूँ उसे सिर्फ वही ही कर सकते हैं। उस औरत ने कहा कि तुम मुझे क्या समझ रहे हो, मैं तुम्हें कोई मामूली जादूगरनी लगती हूँ जो तुम्हारा काम नहीं कर सकती। तुम्हारे बाबा ने उस औरत से कहा कि देख लें, काम बहुत भारी है, इसमें आपकी जान भी जा सकती है, आप हमारी खातिर खुद को खतरे में ना डालें। लेकिन उस औरत ने कहा कि मुझे तुम नेक आदमी लगते हो,
मैं किसी मुआवजे के बिना ही तुम्हारा काम करूंगी। तब तुम्हारे बाबा ने उस औरत से कहा कि ठीक है, आप मेरा ये काम कर दें। इतने साल गुजर चुके हैं लेकिन हमारी कोई औलाद नहीं है। जिसके पास गए हैं उसने पैसे ही लूट लिए हैं, लेकिन कुछ नहीं किया। मैंने खुद भी बहुत कोशिश की लेकिन मुझसे कुछ नहीं हो सका। किसी ने बताया कि बंदिश है और उसका तोड़ वो ही कर सकता है जो यहाँ रहते हैं। उस औरत ने कहा कि वो शख्स मेरा भाई है, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें इस जादू का तोड़ कर दूंगी। फिर उस औरत ने तुम्हारे बाबा से कहा कि अपनी बीवी की तस्वीर दिखाओ। उसे देखने के बाद वो औरत आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगी और फिर उसके चेहरे पर नागवारी के असरात नजर आए। तुम्हारे बाबा ने कहा कि मुझे एक पल के लिए तो ऐसे लगा जैसे ये इनकार करने वाली है, लेकिन फिर उस औरत ने तेज तेज अपना अमल शुरू कर दिया और तुम्हारे बाबा जादू का तोड़ करवा रहे थे। और उधर घर में मुझे ऐसे लगा किसी ने मुझे बाजू से पकड़कर दीवार में दे मारा हो। मैं बेहोश होकर गिर गई। जब होश आया तो मुझ पर खौफ तारी हो गया। मैंने जल्दी से उठकर वजू किया, चादर ओढ़ी और जाए नमाज पर कुरान पाक सीने से लगाकर आंखें बंद कर कर बैठ गई। कुछ देर बाद सब नॉर्मल हो गया, लेकिन मैं बहुत डर चुकी थी। मैं रोती हुई इसी तरह कुरान पाक सीने से लगाए जाए नमाज पर बैठी रही और तुम्हारे बाबा की राह देखती रही। जब तुम्हारे बाबा घर आए तो बहुत खुश थे। मुझे ऐसे बैठे देखकर कहने लगे कि बस अब उठ जाओ, अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली है। मैंने तुम्हारे बाबा से कहा कि आपको पता भी है कि आपके पीछे यहाँ क्या हुआ था। तुम्हारे बाबा ने कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ और अब ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा, लेकिन जिस वजह से मैं गया था वो मसला हल हो गया। मैंने तुम्हारे बाबा से कहा क्या हुआ। उन्होंने बताया कि जब मैं उस जादूगर औरत के पास गया तो उसने कहा कि उसका भाई कहीं गया हुआ है। पहले तो मैं मायूस लौटने लगा था, लेकिन उसने कहा कि मैंने किसी से वादा किया था और उस वादे को निभाने के लिए तुम जैसे दुख के मारों के काम आती हूँ। मैंने कहा कि तुम मुझे उस जादू का दौड़ कर दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। और फिर वो आंखें बंद करके कुछ पढ़ती रही और पूरे 2 घंटे बाद उसने आंखें बंद की और किसी से कहा कि जाओ कि वो पुतला जहां भी है फौरन लेकर आओ। और तभी उसी वक्त एक बहुत पुराना पुतला जिस पर बहुत सारी सुइयां लगी हुई थी और उस पर काले धागे बांधे हुए थे, वो औरत कुछ पढ़ते ही उन्हें खोलने लगी। जैसे जैसे वो धागे खोल रही थी वो तुम्हें परेशान कर रहे थे। और फिर उसने वो पुतला मेरे सामने किया और कहा कि लो, अब तुम्हारी बीवी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तुम ये पुतला ले जाओ और उसे चलते हुए पानी में अच्छी तरह भिगोकर उसी पानी में बहा देना। मैंने उस औरत का बहुत शुक्रिया अदा किया। उसने कहा कि मैं जानती हूँ कि ये गुनाह का काम है, मेरे भाई ने किया है, लेकिन हम लोगों की भी मजबूरी होती है। उसने कहा कि मेरा भाई पैसे के लिए पागल है, इसलिए वो ऐसे बुरे काम करने से बाज नहीं आता। मैंने कहा कि मैं जिंदगी भर आपका मकरूज रहूंगा। इस खुदगर्जी के दौर में कौन किसी का इतना बड़ा काम बिना पैसे के करता है। ये तो तुम्हारे रब का करम था जो वो औरत अच्छी थी, उसने बिना कुछ मांगे हमारी मदद कर दी और इसी तरह हमें जादू से निजात मिली। फिर तुम दोनों बहनें रहमत बनकर दुनिया में आई और हम दोनों जी उठे। मैंने कहा कि अम्मा, उस औरत ने ये नहीं बताया कि आप पे ये जादू करने वाला कौन था। अम्मा ने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की जानने की, लेकिन उस औरत ने पहले ही तुम्हारे बाबा से वादा लिया था कि वो तभी जादू का तोड़ करेगी जब उससे जादू करवाने वाले का ना पूछा जाए। तुम्हारे बाबा ने मुझे कहा कि हमें तो जादू का तोड़ चाहिए था, किसने हम पर जादू करवाया था, क्या जरूरत है उसका पता करवाने की। मैंने कहा अम्मा, लेकिन दुश्मन तो दुश्मन होता है, किसी सूरत भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अम्मा ने कहा कि अल्लाह ताला देख रहे हैं और जो बुरा करता है उसे बुराई का सिला भी उसी तरह मिलता है जैसे नेकी करने वालों को नेकी का सिला मिलता है। फिर अम्मा ने बताया कि तुम्हारी बड़ी बहन पैदाइशी पागल नहीं थी, वो 5 साल की थी जब वो अजीब हरकतें करने लगी थी। हमने डॉक्टर को भी चेकअप करवाया, मगर सबका यही कहना था कि अब ये ठीक नहीं हो सकती। अम्मा अपनी बात मुकम्मल करके घर के कामों में लग गईं और यूं ही दिन गुजरते गए। एक दिन मेरी फुफ्फो जो दूसरे शहर रहती थी अचानक हमारे घर आ गईं। बाबा बहुत खुश थे। बाबा ने कहा कि आपा, आप बहुत दिन बाद आई हैं, मैं आपको बहुत याद करता रहा हूँ।
फुप्पो ने कहा कि बस जिंदगी का सफर हमेशा एक सा नहीं रहता। मैं अस्पताल दाखिल थी, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, अल्लाह ताला ने बचा लिया। फिर फुप्पो ने मेरी तरफ देखा और कहा कि मैं तुमसे अगर कुछ मांगूं तो इनकार तो नहीं करोगे। बाबा ने कहा कि आपा, आप बताएं, मुझसे जो बन सका मैं करूंगा। फुप्पो कहने लगी कि मुझे तुम अपनी छोटी बेटी दे दो, मैं तुमसे उसका रिश्ता अपने बेटे के लिए मांगती हूँ। बाबा ने फौरन हाँ कर दी और फिर एक माह बाद मेरी शादी भी कर दी गई। मेरे शोहर इशफाक बहुत अच्छे थे, अम्मा बाबा उनसे मिलकर बहुत खुश थे। मेरी पागल बहन का खानदान में किसी को भी कुछ पता ना था, इसलिए ये बात सिर्फ मेरे शोहर और मेरे घर वालों को मालूम थी। घर में सब उसे बहुत प्यार किया करते थे। एक दिन मैं माँ को मिलने आई तो अम्मा मुझे गले से लगाकर रोने लगी और बताया कि एक रोज मैं बाजार गई तो तुम्हारी बहन हिना घर में अकेली थी। किसी घटिया इंसान ने आकर उसकी इज्जत खराब कर दी। अब वो माँ बनने वाली है और डॉक्टर कहते हैं कि अबॉर्शन किया तो जान भी जा सकती है। मैं अपनी बड़ी बहन को देखकर बहुत रोई थी। उसे तो कुछ भी पता नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। मैंने ये बात अपने शोहर से छुपा ली और 9 माह बाद उसका बच्चा गोद ले लिया। शोहर को कहा कि ये मेरी दोस्त का बच्चा है, लेकिन मेरी सास सब जानती थी और मैं रोज उस आदमी को बद्दुआ देती जिसने मेरी बहन के साथ ये सब किया था। मगर जब भी मैं बद्दुआ देती, मेरी सास का रंग उड़ जाता और वो मेरे बच्चे को उठाकर अपने कमरे में ले जाती। एक दिन सास की अलमारी साफ करने लगी तो अंदर से गिरने वाली चीज देखते ही मेरी जान निकल गई, क्योंकि सास ही मेरी बहन की दुश्मन थी। मुझे सब पता चल गया था जब सास की अलमारी से एक खत और एक मेडिकल रिपोर्ट मिली थी और वो दोनों चीजें छुपाकर कमरे में ले गई और दरवाजा बंद करके खत पढ़ने लगी। वो खत किसी ने फुप्पो को लिखकर भेजा था कि तुम अपने भाई की बीवी से किस बात का बदला ले रही हो जो तुमने इतने साल पहले किया। उसकी सजा में मैंने तुम्हें तलाक दे दी ताकि तुम अपने इस घटिया काम से बाज आ जाओ, लेकिन तुमने कोई सबक हासिल नहीं किया और अपने ही भाई की बेटी पर जादू करवा के उसे ज़हनी माजूर कर दिया। किस बात का बदला ले रही हो उन मासूम लोगों से? बाज आ जाओ वरना इसका बहुत बुरा अंजाम होगा। यानी कि वो खत मेरे ससुर की तरफ से था। वो मेरी फुप्पो को तलाक दे चुके थे। मैंने उस खत को अपने कमरे में छुपा दिया और उसके बाद मैंने अपनी सास, जो मेरी फुप्पो भी थी, मैंने उन पर नजर रखना शुरू कर दी। और जब वो बच्चे को लेकर अपने कमरे में गई तो मैं अपनी सास के कमरे में पहले से जाकर छुप गई। मेरी सास ने मेरी बहन के बच्चे को नींद की दवाई पिलाई और कुछ चीजें इकट्ठी करने लगी। उनमें सुइयां, काला कपड़ा और कुछ तस्वीर थी और साथ कुछ कच्चा गोश्त भी रखा था। मुझे खौफ आने लगा। मैं ऐसे ही छुपी रही। मेरी सास ने उस बच्चे को उठाकर अपने सामने लिटा लिया और उस गोश्त पर रखकर हाथ में तेज धार चाकू पकड़कर आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगी। मेरी सास जादू करती थी, मुझसे रहा नहीं गया और मैंने आगे बढ़कर बच्चा उठा लिया और उसी वक्त मेरा शोहर दरवाजे पर दस्तक देने लगा। मेरी सास हैरान रह गई। इससे पहले कि वो मुझ पर चाकू से वार करती, मैं दौड़ती हुई बाहर निकली। मेरे शोहर ने जब अपनी माँ के हाथ में चाकू देखा और मुझे इस तरह देखा तो मेरी सास से पूछने लगे कि अम्मा ये सब क्या है। मेरी सास रोने लगी और कहा कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं भला क्यों किसी को मारूंगी। मैंने जल्दी से वो खत अपने शोहर को दे दिया। तब मेरे शोहर ने खत पढ़ा और मेरी सास के सामने किया और कहा कि ये है आपके झूठ का सबूत। आपको अब्बू ने इसीलिए तलाक दी थी क्योंकि आप इन घटिया कामों से बाज नहीं आई थी और हमें कहती रही कि हमारा बाप किसी दूसरी औरत के लिए आपको छोड़ गया है। और उसके बाद मेरे शोहर ने सामने पड़ी सभी तस्वीरों को उठा लिया। वो तस्वीर मेरी और मेरे घर वालों की थी, जिनमें मेरे शोहर के वालिद की तस्वीर भी थी। मेरी सास के चेहरे का रंग बदलने लगा। वो अजीब सी हालत में आ रही थी। मैंने अपने शोहर को बाजू से पकड़कर कमरे से बाहर की तरफ खींचा। उसी वक्त मेरे बाबा एक औरत को लेकर आ गए, क्योंकि मैंने भी फोन करके उन्हें भी सब कुछ बता दिया था। उस औरत ने मेरी सास को देखते ही कहा कि तुम इस काम से बाज नहीं आई। मेरी सास का चेहरा लाल हो रहा था। वो उस औरत से कहने लगी कि तुम क्या समझती हो, तुमने मुझे जादू नहीं सिखाया तो कोई भी नहीं सिखाएगा। मैंने तुम्हारे ही भाई से जादू सीख लिया
आज मैं तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर जादूगर बन जाती अगर इस मनहूस ने मेरा ये चिल्ला खराब ना किया होता। उस औरत ने कहा कि तुम अपने भाई और उसके बच्चों से किस बात का बदला ले रही हो। फिर फुफ्फो ने कहा कि मैं जादू सीखना चाहती थी और सबको अपने काबू में रखना चाहती थी, क्योंकि मेरा भाई मुझसे ज्यादा अपनी बीवी को मानता था। शुरू में जब मैंने जादू सीखना शुरू किया तो उसे चेक करने के लिए अपनी भाभी पर अमल करके देखा, लेकिन मेरा वो वार मुझ पर उल्टा पड़ गया और मेरी भाभी ने भी मुझे बहुत बातें सुनाई थी। फिर बदला लेने के लिए मैंने तुम्हारे जादूगर भाई को इस्तेमाल किया और अपना बदला ले लिया। अम्मा बाबा सब मौजूद थे। जब बाबा ने फुफ्फो से कहा कि तुम इतनी गिर जाओगी, मैं सोच भी नहीं सकता था। तुम्हें मेरी मासूम बच्चियों पर तरस नहीं आया? मेरी बेटी इतने सालों से इस हाल में है। फुफ्फो बोली कि मुझे सबसे नफरत है, अब मैं तुम्हारी इस बेटी को भी नहीं छोड़ूंगी। फुफ्फो मेरी तरफ बढ़ी। जब उस औरत जिसे बाबा लेकर आए थे उसने उन्हें धक्का दिया और फुफ्फो ने ऊंची आवाज में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। फिर फुफ्फो ने बताया कि मैंने जादू करके तुम्हारी बहन हिना के दिमाग को अपने काबू में किया और अपने छोटे बेटे को हिना के पास भेज दिया और फिर उन दोनों से ये गुनाह भी करवाया। मेरे शौहर ने अपनी माँ से कहा कि मुझे आपको माँ कहते हुए शर्म आ रही है। मेरी सास बोली कि तुम्हारा बाप भी मेरे पहले शौहर की तरह मुझे जादू से रोकना चाहता था, इसलिए मैंने उसे मार दिया और दूसरी शादी कर ली। और उस दिन मुझे पता चला फुफ्फो की 2 शादियां हुई थी, लेकिन तुम्हारा बाप भी वैसा ही निकला। मुझे अपने मकसद तक पहुंचने के लिए अपने ही खून से एक बच्चा चाहिए था, जो मुझे तुम्हारी बहन हिना से मिला। बाबा रो रहे थे और कह रहे थे कि खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तभी फुफ्फो ने चाकू से मुझ पर वार कर दिया और कहा कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो तो शुक्र है मेरे शौहर इशफाक ने मुझे बचा लिया और पता नहीं किसने पुलिस को फोन कर दिया। फुफ्फो शोर मचा रही थी। पुलिस वालों के सामने भी फुफ्फो ने इतराफ कर लिया था कि उन्होंने अपने शौहर को अपने हाथों से मारा था। पुलिस वाले फुफ्फो को पकड़ कर ले गए थे। जो औरत बाबा के साथ आई थी उस नेक दिल औरत ने कहा कि आपकी ये पागल बेटी भी 1 माह के अंदर अंदर ठीक हो जाएगी, क्योंकि उस पर भी जादू किया गया था। मैंने आप सबका हिसार बांध दिया है, अब कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। हम सब ने उस औरत का शुक्रिया अदा किया और वो औरत वापस चली गई। फुफ्फो जेल जाकर पागल हो गई थी और उन्हें उम्र कैद की सजा हो गई। मेरी बहन हिना 1 माह बाद बिल्कुल ठीक हो गई और मेरे शौहर के सौतेले भाई, जिस पर मेरी सास ने जादू किया था, एक दिन वो मेरे माँ बाप के घर गए। उन्होंने सबसे माफी मांगी और मेरी बहन से शादी कर ली। आज सब कुछ ठीक हो चुका था, लेकिन जो कुछ फुफ्फो ने किया वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। कोई इतना कैसे गिर सकता है कि अपने नाजायज मकसद को पूरा करने के लिए अपने सके रिश्तों को तबाह कर दे।